So, good morning, students. I am Professor Sriram Kargaukar, and I will be teaching you mathematical statistics. Okay. So, before we move on to our lecture, let me tell you some important instructions. First of all, you have to separately make lecture copy and assignment copy. Okay. So, both the copies you have to make it separately. One copy for regular lectures, which is being taught, what theory will be taught, what numerical examples will be discussed, all these things. Okay. Then assignment copy is for whatever time to time we give assignment at the end of each lecture or middle of each lecture. Okay, may I request to mute? There is a disturbances. So may I request the student to please mute themselves? Okay, thank you. There is a lot of noise. Okay, so let's come back to. So I was saying there are important instructions for you. So you have to maintain two copies, one for lecture copy and another for assignment copy. Okay, so regular lectures notes will be there in the lecture copy, and assignment copy time to time we give you assignments. So for that purpose, and you have to make it in a separate, because we ask you to submit it for the checking and all these things, and there are different activities conducted in the department time to time, class wise or department wise or college wise. Okay, so anyway, assignment copy should be there for class wise. Any activity is there, such like seminars, PPT presentations, or some competitions are there. Okay, so assignments we time to time ask you to submit. So that time you should not hamper with the same copy. If your same copy, if you do both in the same copy, then there will be problem. Okay. Then second assignment that I already told you. So generally at the end of each unit we give the assignments. So your assignment must be submitted or should be submitted time to time. Okay. Assignments are very important and there are some marks on it. Okay, so when it comes to internal marks, then all the things are being assessed. Which are the things which are being assessed for internal? uh, just like your attendance, how regularly you attended, then for your participation attendance, then submissions. Okay, then activities you have participated in. So all these things comes into picture. Okay, then YY is also there for your internal marks. So all this forms the basis for internal marks, and you can get the maximum out of it. So it's in your hand. Now, besides lecture, curricular activities are arranged time to time, which is compulsory. Okay, whichever activity is arranged there. Suppose I ask for PPT presentation, or you have to make a PPT on particular topic we have taught so far in future, suppose. So on that on that topic you have to make a PPT. This is not the work of a particular student. Everybody has to participate in it. So it will be compulsory. Okay, whatever the activity class wise or department wise we are going to organize, you have to participate in it, because these activities are made for your development of your subject knowledge or your personal growth. Okay, then you have to purchase non-programmable scientific calculator. Okay, this calculator is important because in statistics there are huge calculations are there. Okay, so 50 values are there, 100 values are there, so it is not possible to do it on the regular calculator. Okay, so non-programmable scientific calculator. So just you can, if you search, if you google, then you can generally find this.
there are so many options with you. So purchase which is of least cost, and you don't purchase too much costly calculator. Okay, so from 500 to onwards, 500 onwards you have, or 500 to 600 onwards you have, you can get the calculator, non-programmable scientific calculator, and we allow the calculators in the exam because it is the statistics is the subject of calculations. Okay, so it is not normally can be done on the other things. Okay, like a regular calculator which the accounts have, so it cannot be performed on that. Okay, huge calculations are there. So scientific calculator you have to purchase as early as possible. Okay, there are a variety of options available to you. Then next, then attendance. Okay, as far as possible, attend all the lectures and practicals. But as per the Savitribai Phule Pune University, okay, 75% attendance is must. Without, if a student has less than 75% attendance, then you cannot appear for the exam actually. So you have to maintain that. Okay, and besides the rules and alls, if you regularly attend the lectures and practicals, so you will never face any problem. That is my personal opinion. Problems in the sense understanding of the concept. Okay, there is never any problem from any teacher or staff. Okay, but problem in terms of understanding the concept, because in statistics or any other subject, every topic is linked with the next topic. Okay, it's just like a chain. आपके पास अगर चेन है, सो तो चेन के अगर बीच की अगर कड़ी टूट जाए तो फिर बाद में इसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है. ओके, सो इट्स जस्ट लाइक अ चेन और अ सिंगल चैन इन दैट. ओके, तो एक कड़ी की तरह काम करता है. आप अगर एक भी अगर लेक्चर मिस किया तो हो सकता है आगे के कंसेप्ट आपको समझने में डिस्कस हो. ओके, और एक बात इस बार जस्ट दिस इज़ माय न्यू इनिशिएटिव कि इस बार जो है जितने भी लेक्चर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर वीडियोस होंगे, मैं अभी हर एक जो है कोर्स स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, दोनों पेपर के टॉपिक्स है, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट लास्ट यूनिट से सेम 1 टू सेम 2, तो सभी टॉपिक्स पे मैं ये लेक्चर जो है वीडियोस में क्रिएट करने वाला हूँ, या फिर जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, वो तो दोनों तरीके से जो भी पॉसिबल होगा मैं लेक्चर वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ. सो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल. ओके, तो यहाँ पे आप अगर आप आते हो तो आपको लेक्चर्स को अगर किसी को बार बार सुनना है, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर दे वांट टू अंडर, स्पेशली इसकी ज़रूरत जो है एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है. तो लेक्चर्स जो है टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक पे रिकॉर्ड करके मैं वो लेक्चर जो है वो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे. तो आप वहाँ पे आके सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमेशा नए नए लेक्चर्स जो भी वीडियो लेक्चर्स जो भी बनेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि एग्ज़ाम के समय में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है समझने में. दे नीड a revision, and that time teachers are also engaged in so many things in arranging the exam, curriculum, departmental work and all things. Anyway, so एक find out a way कि बच्चों के नीड को कैसे पूरा किया जाए, और उनको अगर जो लेक्चर हो चुका है उसको वापस से अगर सुनना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे एक ये बनाया है. इट इज जस्ट क्रिएटेड न्यू, और इस पर आपको सभी आने वाले कुछ दिनों में आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे आपको. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल पोस्ट दिस लिंक ऑन योर व्हाट्सएप मिस टीम्स. ओके, तो वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लेक्चर. सो प्री रिक्विजिट्स. ओके, प्री रिक्विजिट्स यानी कि आपको फर्स्ट लेसन जो है वो समझने के लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है. तो अभी मैं सिलेबस के ऊपर आ जाता हूँ. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया स्टैट्स का क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंस में, क्यों हमें पढ़ाई करना है स्टैट का, और अभी मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा अपने जो पेपर है उसके बारे में, है ना.
तो इसमें किसी को कोई डाउट्स है? सबने ये समझ लिया है कि स्टैट्स किस तरह से इम्पोर्टेंट है हर सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए? So say this is our first unit going to be, okay? Okay. So this here we are going to start with the, okay? तो theory of probability, okay? तो probability के बारे में आप लोगों को चाहे पहले आइडिया हो या ना हो, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से हर यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स हियर। तो जो बेसिक्स है इसके लिए, तो हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक पे जंप नहीं कर सकते, हमको जो है ये टॉपिक को समझना पड़ेगा, ओके? उसके रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने प्री रिक्विजिट बोला यहाँ पे, आई हैव सेड प्री रिक्विजिट। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक है ना, लेसन का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूनिट 1। इसको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके? तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। और इनसे पहले आपको कुछ और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वो आज यहाँ पे हम देखेंगे, ओके? सो just a minute, I am attaching my pen tab, so I need to close this word files and then I will open it again, okay? Just a minute, just give me a minute. So just finished, just a minute. Okay, so I'm back again. Am I audible properly? Okay, thanks. Yes, sir. Okay, thank you very much. Now let's start from the basics. Okay, so we are supposed to understand about the theory of probability and what are the contents in this. Let's try to see that. FIBSc Computer Science syllabus I want to open. Yes, this is here in front of you. So counting principles, permutations and combinations, all these things. Okay, so these concepts are prerequisites. Okay, so before understanding this, we cannot move ahead. Okay, so in this lecture, our aim is to understand these basic concepts. Okay, so just like suppose you visited a big company, जैसे आपको अगर किसी बड़े CEO से मिलना है ना, MD ऑफ द कंपनी, तो आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते, उसके पहले जो है आपको मिलना पड़ेगा वहाँ के जो इंचार्ज है, ऑफिस इंचार्ज जो है, ऑफिस इंचार्ज उनसे मिलना पड़ेगा। उसके पहले आपको वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बराबर? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आप फ्रेंडली वे से समझ सकें। तो पहले अपॉइंटमेंट लेना, फिर वो ऑफिस इंचार्ज से मिलना, फिर उनके टाइमिंग जो भी है
तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे डायरेक्टली, अगर ये आप हो और आप डायरेक्टली उनसे नहीं मिल सकते, बराबर है, अगर मिलेंगे तो आपको वो टाइम भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम अपने रेफरेंस के हिसाब से क्या लेंगे कि अगर हमको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी समझना है तो वो ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये कंसेप्ट से होके गुजरना पड़ेगा, ओके। काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओके, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, तो इसी को अभी हम समझने वाले हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ओके। तो प्रोबेबिलिटी, क्या आप में से किसी को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एनीबडी? यस। सो प्रोबेबिलिटी का रिलेशन कहाँ पे आता है? जब जब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में चांस या फिर अनसर्टेनिटी, वी डील विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि पता नहीं। यस यस यस, समबडी वाज टॉकिंग। यस, व्हेन यू टॉक इन आवर डे टू डे लाइफ अबाउट द चांस, कि यहाँ पे मुझे सपोज डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन में आया है, उसको अभी यानी कि 95% चांस, यानी कि इतने चांसेस थे, या फिर कोई एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस इतने हैं। सपोज इट इज़ suppose there is a match, cricket match going on, then initially we thought कि India versus Australia match है, so India has this much chance, Australia has this much chance. So when you use this word chance, that is nothing but what? You are using the probability. और कहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी को? इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। जहाँ पे अभी मान लो कि वर्ल्ड कप 2011 पता है आपको, मैच हो चुका है, इंडिया ने जीत लिया है, ओके। सो देर इज, दैट इज अ सर्टन थिंग, सो यू आर नॉट सपोज टू, दिस इज अ सर्टन थिंग, सो देर इज नो रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर, ओके। हाँ, अभी आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें कौन जीतेगा ये अगर आप प्रेडिक्ट करते हो तो ये अनसर्टन है अभी, है ना। या फिर कोई भी नेक्स्ट इवेंट जो भी होने वाला है, मे बी एक मैच, मे बी एनी एक्सपेरिमेंट, मे बी एनीथिंग, ओके, विच रिलेट, जैसे कि आप कहीं जाने वाले हो, ओके, आप कहीं घूमने जाने वाले हो, वहाँ पे आप वहाँ वहाँ सपोज यू आर गोइंग इन दिवाली, मेनी पीपल ट्रैवल टू देयर रिलेटिव्स, तो फिर आपको टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, आपको एक कंफर्म टिकट मिलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग, सो मेनी पीपल आर इन वेटिंग, ट्रैवलिंग्स आर वेटिंग, फिर आपको वो टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसमें भी जब आप टिकट बुक करते हो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है कि 80% चांस, 50% चांस, और जब बहुत ज़्यादा रश हो तो चांसेस कम दिखाते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जिसमें हम अनसर्टनिटी को फेस करते हैं। तो ये दो चीज़ अगर आपको, ये दो वर्ड्स अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी कितना डीपली हमारे लाइफ में ये हुआ है, यानी कि रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ओके। सो एवरी डे वी आर यूजिंग द and dealing with the probability, okay. So when there is a chance, when there is a uncertainty, this is a it means we are dealing with the probability, okay. So probability को हम इस तरीके से define कर सकते हैं, okay. So it deals with the uncertainty in day to day life. We are discuss about the chance of any event that happens in future or after some time. These events are certain or uncertain. The study of chance or uncertainty is the theory of probability. तो इस अनसर्टनिटी या चांस को स्टडी करना यानी कि क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। सो द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज डिराइव्ड इन टू डिफरेंट वेज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ओके। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, तो बस इतना जान लो कि अगर आप चांस या अनसर्टनिटी वाले सिचुएशंस को डील कर रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ, है ना। इसका कैसे, यानी कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ ओरिजिनेशन होता है, कहीं ना कहीं से तो वो आया हुआ है ना, ओके।
तो ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही यूँ ही वो डेवलप हुआ है। तो थोड़ा सा हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, है ना। ये पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, बट अभी आपके मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी बता दूँ। ओके, कि कैसे ओरिजिनेट हुआ है ये। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेम्स ऑफ चांस। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? गेम्स ऑफ चांस। यानी कि पहले जब राजा महाराजा था उससे भी पहले यानी कि ऐसे कुछ गेम्स वगैरह खेला करते थे, या फिर राजा महाराजा के ज़माने भी ऐसे गेम्स ऑफ चांस, यानी कि जैसे जैसे आपको महाभारत में पता है ना, वो शकुनी जो गेम खेलता है, जो भी है वो गेम का नाम, तो वो क्या है, एक प्रकार से चांस का ही तो गेम है ना वो। यानी कि अगर आपके फेंके हुए पासे ठीक आए तो आप जीत गए, अगर आपके बताए हुए पासे नहीं पलटे, नहीं हुई, तो फिर आप हार जाते हो, है ना। तो अगर आपकी जीत होती है तो आपको अपोनेंट के जो है जो भी उसने दाव पे लगा है वो मिल जाता है। अगर आप हार जाते हो तो आपके पास जो भी है वो उनको मिल जाएगा। यानी कि ये हारने और जीतने की बात होती है। तो गेम्स ऑफ चांस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो द फॉर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर डेवलप्ड बाय अरब मैथमेटिशियंस अल खलील अल किंडी। का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? यहाँ पे अरब अरब के जो लोग हैं, अरब मैथमेटिशियंस, अरब में जो मैथमेटिशियंस रहते थे उनकी वजह से, जैसे कि अल खलील, ओके, अल किंडी, ओके, देन इब्न अदलान। तो इन लोगों ने 8 से 13वीं शतक में जो है 8 टू 13th सेंचुरी में जो है, ओके, इसको इन्वेंट किया था। तो तब ये गेम एज ऐसे अभी हम जो प्रोबेबिलिटी को समझ रहे इस फॉर्मेट में नहीं था। ओके, 13th सेंचुरीज में जो है 8 टू 13 सेंचुरीज के दौरान इसको डेवलप किया गया था बाय अरब मैथमेटिशियंस लोगों के थ्रू। ओके, तो स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी, फिर ब्लेज पैस्कल गेव अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। तो इसके बाद अभी ये बहुत ही रॉ फॉर्म में था, उसके बाद ब्लेज Pascal. Just a minute, I have a call. Just a minute. ओके, तो उसके बाद जो है ब्लेज पास्कल। ओके, so Blaise Pascal gave a systematic and scientific study of theory of probability. It was then developed by other mathematicians. ब्लेज पैस्कल ने उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी किया, उसके बाद और भी मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इसको और डेवलप किया, जैसे कि जेम्स बर्नौली। आर यू ऑल एबल टू सी द अल्फ़ाबेट्स? यानी कि सबको ठीक से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, या थोड़ा सा इसको फॉन्ट को रेस करूँ थोड़ा? ओके, जेम्स बर्नौली। तो ब्लेज पहले तो अरब के जो लोग थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। वो बहुत ही रॉ फॉर्म में था। उसके बाद ब्लेज पैस्कल ने इसमें मॉडिफिकेशन किए, उसके बाद आगे के मॉडिफिकेशंस जेम्स बर्नौली और डी मोविर ग्रेट मैथमेटिशियन, इन्होंने इसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए प्रोबेबिलिटी में। थॉमस बेज, ऐसी लंबी लिस्ट है। थॉमस बेज, इसके बाद पियरे सिमेंट डी लैपलास, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लैपलास, ओके, आर ए फिशर एंड मेनी मोर। ओके, तो इन काफ़ी लोगों ने जो है इसमें डेवलपमेंट्स किए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसको कई सदियाँ लगी है, मेनी सेंचुरीज, आफ्टर ओवर मेनी सेंचुरीज दिस प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट इज नाउ इन द करंट फॉर्म विच वी यूज। ओके, तो पर इसका ओरिजिनेशन हुआ था गेम्स ऑफ चांस से, और अभी हम जो देख रहे हैं वो कम्प्लीटली डेवलप है। इसमें और भी रिसर्च हो रहा है और डिटेल में इसकी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड कैन वी मूव अहेड? आपको समझ में आ गया बेटा? ओके, तो हिस्ट्री, Yes, sir. ओके, थैंक यू।
तो हिस्ट्री के बारे में अगर आपको पता होता है तो हमको बेहतर होता है आगे के पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? ओके, बहुत ही सिंपल है, जो आप समझ रहे हो बस वही है इसका मीनिंग। तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि हाउ वी गेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वेरियस अरेंजमेंट्स। ओके, तो काउंटिंग प्रिंसिपल जो है दो तरह के होते हैं, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि आपको दो चीज़ें परफॉर्म करना है, टू टास्क, मैं इसे टास्क कहता हूँ, है ना। एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल लेना ही है तो सिंपल सा एग्जांपल ले लें, बुक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। सपोज आपके पास स्टैट और मैथ्स की बुक्स है, ठीक है, ओके। और आपका टास्क क्या है, सिलेक्ट करना है आपको बुक, है ना। तो सिलेक्ट टू बुक्स, मान लो कि मैथ्स के बुक्स यानी कि एन मैं बोलूँगा इसको या फिर एम बोलूँगा, है ना। एक मिनट, आपको दोनों दो टास्क परफॉर्म करना है, समझ में आया। एक टास्क जो है आप फर्स्ट टास्क जो है आप एम वे से कर सकते हो। ये टास्क कुछ भी हो सकता है, अभी बुक सिलेक्ट करना, पेन सिलेक्ट करना, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो तो जो भी शॉपिंग कर रहे हो उसको कितने वे से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आप मार्केट में गए हो, शॉपिंग मॉल में गए हो या फिर कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको मान लो कि आपको एक 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 ट्राउज़र और एक अच्छा सा टी शर्ट आपको अगर परचेज़ करना है या फिर जो भी मटेरियल आपको परचेज़ करना है, तो फर्स्ट टास्क अगर आप एम वे से कर सकते हो और दूसरा टास्क अगर आप एन वे से कर सकते हो, ठीक है। ये है नंबर ऑफ वेज, ये है नंबर ऑफ वेज। तो एडिशन रूल क्या कहते हैं कि अगर आपको ईदर वन, अगर आपको कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है यानी कि ओनली वन अगर आपको टास्क करना है तो आप m प्लस n वे से कर सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा, ओके। सबसे पहले इसको, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी कि अगर आपके पास स्टैट के 5 बुक्स है लाइब्रेरी में, एक एग्जाम्पल, ओके। बुक्स तो कई है, उनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। और मैथ्स के मान लो कि 9 बुक्स है। अब आपको एनी वन यानी कि एक ही बुक्स इशू करना है आपको, एनी वन। तो फिर आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए, यस, कितने ऑप्शंस हो गए, कोई कोई बताएगा मुझे। यस, अगर आपको मैथ्स और स्टैट में से एक ही बुक सिलेक्ट करना है, आइदर वन, तो कितने ऑप्शंस हो गए, कितने वे से आप एक बुक सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, स्टैट के बुक्स कितने हैं, 5, मैथ्स के बुक कितने हैं, 9, तो टोटल कितने वेज हो गए आपके पास, 14 वे से। तो एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सपोज अ टास्क कैन बी परफॉर्म, नाउ आई हैव आल्सो नोट्स, ऑल द नोट्स आर रेडी फॉर यू। और जैसे मैंने कहा इसके साथ वीडियो लेक्चर्स भी आपको कुछ दिनों बाद अवेलेबल रह जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल क्या कहता है, अगर आपको दो टास्क परफॉर्म करना है, सपोज मैंने वहाँ पे ए और बी, मैं यहाँ पे ई एंड एफ लेता हूँ। इफ़ यू हैव टू परफॉर्म टू टास्क एंड ए कैन बी परफॉर्म, फर्स्ट टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, अनदर टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, देन either of them either of them can be performed in m plus n ways। यानी कि आपके पास दो सब्जेक्ट के बुक्स है और आपको एक ही सब्जेक्ट का बुक सिलेक्ट करना है, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं, m प्लस n वे। ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर।
ठीक है, मैं अभी पेन्स की बात करता हूँ। आपके पास ब्लैक पेन जो है वो सपोज 4 पेन्स है, और ब्लू पेन जो है आपके पास जो है सपोज 6 है। ठीक है, तो आपको एक ही पेन सिलेक्ट करना है, ओनली वन पेन। तो कितने में से कर सकते हो आप? 10 वेज। यस, 4 + 6 वेज, यानी कि 10 वेज से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो इसे कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So addition principle of counting says that suppose you have to perform 2 tasks, then first task can be performed in m ways, another task can be performed in m ways, n and m ways, then either of them can be performed in m plus n ways. इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसको जनरलाइज ओके इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं अगर टास्क हम बढ़ा दें, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। सपोज देर इज एंथ टास्क, सपोज 10 टास्क है ना। ओके, हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये मान लो कि अभी हम कंसिडर करने के लिए M1 होगा, ये M2 होगा, ये M3 होगा, ये M10 होगा, यानी कि ये नंबर ऑफ वेज। पहला टास्क M1 वे से, सेकेंड टास्क M2 वे से, थर्ड टास्क एंड सो ऑन, 10th टास्क कैन बी परफॉर्म इन M10 वेज। ठीक है, तो हम इसका भी ये जनरलाइज ये ले सकते हैं कि अगर 10 टास्क में से एक ही टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आप ये वे से कर सकते हैं, इतने वे से कर सकते हैं। तो इसी का जनरलाइजेशन है ये। तो ये भी सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। तो इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको ऑल जितने भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे आपको सभी एग्जीक्यूट करना होता है, आपको सभी परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे आपने देखा कि ओनली वन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, सभी परफॉर्म करना होता है। जैसे कि अगर मैं बुक्स की बात करूँ, ओके, इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स, ओके, तो बुक्स की बात करूँ तो लाइब्रेरी में तो सैकड़ों बुक्स है, पर सपोज़ मैं अभी कुछ बुक्स लेता हूँ, जैसे कि स्टैट के 4 बुक्स लेता हूँ और इनको डिनोट करता हूँ स्टैट 1, स्टैट 2, स्टैट 3, स्टैट 4। ठीक है, और फिर मैथ्स के बुक लेता हूँ, मैथ्स की बुक सपोज़ 5 है, तो इसको भी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, कुछ कोडिंग कर देता हूँ, M1, M2, M3, M4 और M5। अब मुझे देखना ये है कि मैं कितने डिफरेंट वे से दो बुक अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया आपको? इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिफरेंट। तो देखो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, आप m×n मल्टीप्लाई कर लो, इतने वेज आएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑल लिखा है दो के, यहाँ पे दोनों के लिए वर्ड आएगा बोथ। अगर आपको दोनों बुक सिलेक्ट करना है तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, m×n में से, यानी कि ये 20 वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लिस्टिंग करके देख सकते हैं, जैसे कि पहला स्टैट का बुक आया और दूसरा मैथ्स 1 का सिलेक्ट हुआ, इसका S1 M2 और S1 M3, S1 M4। ठीक है, उसके बाद S1 M5। ऐसे ही हम बाकी के भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, S1, यहाँ पे S4 M1 एंड सो ऑन। अभी मैं लिस्टिंग नहीं दूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दूंगा S4 M5। तो देखो अभी 4 5 यानी कि टोटल 9 बुक्स है, तो हमको हमको क्या मिला, 4×5 यानी कि 20 अरेंजमेंट्स मिले, बराबर है। लाइब्रेरी में ऐसे हज़ारों बुक्स होते हैं, बराबर, जो एक साथ अरेंज होते हैं, कई अलग अलग होते हैं। तो कितनी कॉम्बिनेशंस एंड कितने परमुटेशंस करने पड़ेंगे, कितने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो आपको टाइम जो जाता है ये सब कैलकुलेशन करने में, वो टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये सब ये है।
तो देखो अभी हज़ारों सैकड़ों बुक्स है, मान लो कि मैंने अभी 100 बुक्स लिया और इसके 250 बुक्स लिया स्टार्ट और मैथ के, तो भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक को लिस्टिंग करो और देखो कि कितने वेज से आप ये कर सकते हो। तो आपको एक रेडी और स्टडी एक तुरंत आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करे कि भाई कितने कॉम्बिनेशंस, कितने अरेंजमेंट्स, कितने वेज से मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो दैट इज़ फाइन। तो ये रिड्यूस करता है आपके टाइम को, है ना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको within seconds you can get the total arrangements, total ways you can do the arrangements। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ। डू यू एग्री विद दिस? या फिर आपके पास इतने बुक्स का अरेंजमेंट करने के लिए टाइम है? जैसे कि मैंने 4 स्टार्ट और 5 मैथ्स की बुक्स को मैंने अरेंज किया, तो मुझे इतना समय लगा 2 मिनट। अगर ये सैकड़ों में अगर बुक्स होते और इसमें तो और भी सब्जेक्ट आएंगे, अभी कंप्यूटर्स के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, तो सबका अरेंजमेंट्स करना कितना पॉसिबल होगा आप देखो, कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा ना, है ना, कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा ये, सबको अरेंज करके देखना। तो इतना टाइम है अपने पास नहीं है, हमको ऐसे टेक्निक की ज़रूरत है जो हमको just by few calculations can tell me how many arrangements are possible there। ओके, तो ये टाइम रिड्यूस करता है। मैं और एग्जांपल्स लूँगा। तो अभी मैंने जो टाइम रिड्यूस करता है बोला, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हुआ, है ना। अब मैं एग्जांपल्स लूँगा, एग्जांपल नंबर 2, है ना। तो आपको मान लो कि कोई टू व्हीलर लेना है। अब मैं टू व्हीलर स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा कि बाइक लेना है या स्कूटी लेना है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, अपनी अपनी चॉइस समझ लो आप। ठीक है, तो टू व्हीलर परचेस करना है मुझे। ओके, तो टू व्हीलर परचेस करना है और मेरी स्पेसिफिकेशन क्या थे, मान लो कि उसमें ब्रांड्स, ये टू व्हीलर जो है मान लो कि 4 ब्रांड्स में आते हैं। आप कोई भी कंपनी ले सकते हो टू व्हीलर्स में, अभी होंडा ले सकते हो, सुजुकी ले सकते हो, देन टीवीएस ले सकते हो, और भी कोई ब्रांड होगा तो वो ले सकते हो। मान लो कि ब्रांड जो है आपके पास कितने हैं, 4 है। और ये बताया गया कि हर एक में जो है कलर्स कॉम्बिनेशन भी है, तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है 5 है। ठीक है, तो हर एक अवेलेबल है 5 कलर्स में, 1 2 3 4 5, इसको भी वैसे ही। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको कोई भी बाइक किसी भी कलर की चल जाएगी। यस, 1 और 2 पीपल प्लीज़ आंसर मी। आपको कोई भी बाइक, किसी भी ब्रांड की बाइक कोई भी कलर की चल जाएगी क्या? नो सर। नहीं सर। है ना। तो आप बहुत पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो अपने चॉइस के बारे में। आपको पता है कि आपको कौन से कंपनी की कौन से ब्रांड के बाइक लेनी है और किस कलर में लेना है, ये भी आपका फिक्स हुआ है। तो फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से कितने चांस है, कितने वेज है आप ये सिलेक्ट करने के लिए। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, ब्रांड है 4 और हर कोई अवेलेबल है 5 कलर्स में। तो कौन बताएगा मुझे, 4 × 5 यानी कि आपके पास है 20 चॉइसेस। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल इसके ऊपर। अगर आपको समझ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 3। आप अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अभी आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यू हैव टू सिलेक्ट अ ड्रेस, कंप्लीट ड्रेस। तो उसमें ट्राउज़र्स आ गए। ट्राउज़र्स मान लो कि आपके पास ब्रांड से आपको आपको एक ट्राउज़र सिलेक्ट करना है, एक शर्ट सिलेक्ट करना है। ओके, अगर बॉयज़ है तो शर्ट, या फिर गर्ल्स के हिसाब से गर्ल्स यानी कि जीन्स एंड टॉप आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो जो भी है एग्जांपल को समझना है हमको, एक ट्राउज़र्स और एक शर्ट सिलेक्ट। अभी बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े आते हैं, जैसे कि
पीटर इंग्लैंड है, फिर और अभी तो कॉटन की ये वो ऐसे कई सारे ब्रांड्स आ गए। तो इसमें भी अगर सेम एग्जांपल इसको भी हम इलाबरेट कर सकते हैं। ब्रांड्स मान लो कि देयर आर 10 ब्रांड्स, अब तो कई सारी कंपनीज है, 10 ब्रांड्स है, हर एक ब्रांड में जो है आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, हर एक ब्रांड में आपको कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मान लो कि 20 कलर वैरायटीज आर देयर, ओके ओके, और आपको ये दोनों सिलेक्ट करना है एक एक, ऐसे नहीं आपको कंप्लीट सेट सिलेक्ट करना है परचेस करने के लिए जा रहे हो। चलो अभी दिवाली है, अगर हम किसी को गिफ्ट करना है, हमारे घर में जो है बड़े होते हैं, कभी मेहमान आते हैं हमारे यहाँ पे घर में, तो मम्मी पापा उनको देखो कुछ गिफ्ट देते हैं, कपड़े दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पैंट, या फिर शादी का जब सीज़न होता है, शादी के दौरान जो है वो जो हम लोगों को कुछ ये देते हैं, कपड़े ऐसे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको पैंट ही दे दिया या फिर उनको शर्ट ही दे दिया, ऐसा नहीं होता है, वो कंप्लीट सेट देना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इतने सारे लोगों के लिए इतना सिलेक्ट करना, अभी ये तो सिर्फ खाली एक ही पर्सन के लिए है। अगर ऐसे 10 पर्सन के लिए है तो एक पर्सन के लिए ये सिलेक्ट करना कितना वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है आप लोगों का, है ना। कौन सा ट्राउज़र ले, कौन सा शर्ट ले, कौन से ट्राउज़र को कौन सा चीज़ देखे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ होती है, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब आप कपड़ों की चॉइसेस करते हो अपने हिसाब से, है ना, तो उसमें भी आप ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डायरेक्टली यूज करते हो। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट एग्जांपल्स। okay, example of books, example of then bikes, choices of bikes, and then choices of clothes, okay। तो ये एग्जांपल सफिशिएंट है। तो अभी किसी शोरूम में, कपड़ों का शोरूम है, वहाँ पे कई, या फिर शॉप है, वहाँ पे सैकड़ों कपड़े होते हैं, सैकड़ों ट्राउज़र्स होते हैं। अगर आप डीमार्ट में जाओगे या फिर कोई अच्छे से इसमें जाओगे, ब्रांड फैक्ट्री है, ऐसे बड़े बड़े इसमें जाओगे, मॉल्स में जाओगे, तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, सैकड़ों के इसमें। फिर हर एक का अगर आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर आप अरेंजमेंट देखोगे, कॉम्बिनेशन देखोगे, तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। मान लो कि आपको बताए, तो आपको डायरेक्टली कुछ वेज चाहिए जिससे आपको तुरंत पता चले कि इतने वेज से हम ये पॉसिबली कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फैक्टोरियल। ओके, सो फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में आपको पता है? डू यू नो द फैक्टोरियल नोटेशंस, यस और नो? ये लिखा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। फैक्टोरियल नोटेशन एंड फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है? यस, क्योंकि हमको ये बार बार यूज आएगा। और किसने इन्वेंट किया ये फैक्टोरियल नोटेशंस को? हु इन्वेंटेड दिस? फ्रेंच मैथमेटिशियन। किसने? फ्रेंच मैथमेटिशियन। कितना इंटेलिजेंट होगा वो, क्योंकि इसका हर जगह पे ऐसा कोई ये नहीं है जहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता। क्रिश्चियन क्वैम, ओके, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है 1808 में। तो बहुत ही अच्छा एक मैथमेटिकल नोटेशन इन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप सिंप्लीफाई करके? एन इंटू क्या आएगा आगे? यस, n-1। n-1 इंटू n-2, और इसको अगर लास्ट तक लेके गए 3 इंटू 2 इंटू 1। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं कि 5 फैक्टोरियल। तो इसको बता पाएगी कोई? इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये फैक्टोरियल का सिंबल के बारे में आपको अच्छे से माइंड में समझ लेना है। और हमेशा याद रखो कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का भी मतलब 1 ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म्स में हम ये कर सकते हैं, जैसे कि 5 को हमने 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, और आगे का जो ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे ही हम 5 को भी ऐसे, 4 को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के बारे में आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी हमको काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना
अभी इसके बाद का जो हम देखेंगे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं? हमको प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना है। प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने से पहले हमको सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स, ये टॉपिक देखना है। ये टॉपिक को रीच करने से पहले हमको परमुटेशन, 1 मिनट, डिटर्मिनिस्टिक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके पहले हमको एक्सपेरिमेंट को समझना है। मैं टाइप लिखने से अच्छा यही लिख देता हूँ। हमको एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझना है। इसको समझने से पहले हमको प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को समझना था। तो हम एक देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रीच करना है, और हम अभी कहाँ पे स्टार्ट किया, ये प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को समझा है। अभी हमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझना है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देखना है, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स को समझना है, तब जाके हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं।